ठीक है. So what we are going to do in the today's experiment, we will apply all the three theories. What are the name of three theories? First one is Goodman theory, second one is Soderberg theory, and third one is Gerber theory. So in the design of the mechanical component, we will apply all these three theories. Okay. So for Goodman line, if I say, let this is the axis sigma m, this is the axis sigma a. So for Goodman line, this is the point SC, this is SUT. If I join SC with SUT, then this is the Goodman line, and this portion is the safe region, and this portion is the unsafe region. So let there is a point P over here at the border line, and let the coordinates of these points are SM, SA. The coordinates of these points are SM, SA. So if I draw the perpendicular from over here, then this will represent SM, and if I draw a horizontal line over here, then this point will represent SC. So SA is the amplitude stress for the point P, and SM is the mean stress for the point P. So SM, SA are the coordinate of the point P. Okay. So suppose there is another point Q over here. There is another point Q over here. And let the coordinates of the point Q are sigma m, sigma a. So P points coordinates are SM, SA. Q points coordinates are sigma m and sigma a. Okay. So you already know from the previous studies that a line intersects x-axis and y-axis. That this is the x-axis, this is the y-axis. Then the equation of this line is given by x over a plus y over b equal to 1, where a is the x-intercept. So this distance is a and this distance is b. So a and b are the intercept. So in case of Goodman line, what is the x-intercept? X-intercept is SUT. And what is the y-intercept? Y-intercept is SC. So the equation of the Goodman line is given by SM divided by SUT, SM divided by SUT, or you can say in this way, sigma m divided by SUT plus sigma a divided by SC equal to 1. ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? राहुल, देखो, जब x एक्सिस और y एक्सिस रहता है तो हमारी लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, जहां a इज द x इंटरसेप्ट, b इज द y इंटरसेप्ट. यदि मुझे गुडमैन लाइन का इक्वेशन बनाना है, मेरी फर्स्ट एक्सिस क्या है? सिग्मा m. सिग्मा m के साथ में इंटरसेप्ट क्या है ना? इंटरसेप्ट देखेंगे आप तो यहां से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है यहां तक का, इस डिस्टेंस इज SUT. So x-intercept is SUT, and similarly the y-intercept is SC. So the equation of the line is given by sigma m divided by x-intercept, means sigma m divided by SUT plus second axis sigma a divided by SC equal to 1. So this is the equation of the Goodman line. This is the equation of the Goodman. ठीक है. तो अब आपको मैटलैब में क्या करना है? इनको गुडमैन लाइन को प्लॉट करना है. ठीक है, आपको क्या करना है? गुडमैन लाइन को प्लॉट करना है. आपको सोडरबर्ग लाइन को भी प्लॉट करना है, गर्बर पैराबोला को भी प्लॉट करना है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लैब का? ऑब्जेक्टिव इज टू प्लॉट सोडरबर्ग लाइन, गुडमैन लाइन एंड गर्बर पैराबोला. ये आपको प्लॉट करना है. ठीक है, कितने लोग कर सकते हैं? एनी आइडिया? बोलिए, इंटरेक्टिव है सेशन है ना, आप बताइए कौन कौन कर सकते हैं. तो गर्बर नहीं पता कैसे बनेगी, बाकी तो गर्बर के बाकी तो कर सकते हो है ना. तो देखिए, मैं जरा सा आपको आइडिया देता हूँ अभी, और आप सबको प्लॉट कर पाएंगे, और इससे आप बाकायदा लर्निंग भी होगी आपकी. तो देखिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडमैन लाइन की जो इक्वेशन है ना, गुडमैन, तो गुडमैन लाइन की जो इक्वेशन है वो बहुत ही आसान है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस सी प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई एस यू टी इक्वल टू 1। सिमिलरली सोडरबर्ग लाइन का जो इक्वेशन है ना, सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन क्या चेंज आएगा, केवल एक्स इंटरसेप्ट बदल गया। एक्स यू टी की जगह एस वाई टी हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट एस यू टी था, नाउ द एक्स इंटरसेप्ट इज एस वाई टी, तो केवल हम एस यू टी की जगह एस वाई टी कर देंगे और बाकी सिग्मा ए डिवाइड बाई एस सी एज इट इज रहेगा इक्वल टू 1। So this is the equation of the Goodman line, first one, and second one is the equation of the Soderberg line. Correct. अब गर्बर का यदि इक्वेशन देखें, इस गर्बर पैराबोला की जो इक्वेशन है ना, तो वो अभी आप इसी तरह लिख सकते हैं, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस सी प्लस सिग्मा एम डिवाइडेड बाई, इसका इंटरसेप्ट क्या है, एस यू टी, बट ये क्वाड्रेटिक कर्व है इसलिए इसमें पावर 2 आ जाएगी, so that will be equal to 1. So this is the equation of the Gerber parabola or ना Gerber parabola. तो अभी अब आपके पास तीनों इक्वेशन है और इन तीनों को आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करोगे जरा बता सकते हो, मैटलैब में कैसे स्टार्ट करोगे, है ना। सबसे पहले आप गर्बर की कैसे आई सर इक्वेशन, एक बार फिर से बता दीजिए। गर्बर की इक्वेशन देखो, गर्बर पैराबोला जो इक्वेशन है तो इसके इंटरसेप्ट तो वही है जो गुडमैन के हैं, है ना। गुडमैन से देखो, गुडमैन की इक्वेशन ये है ना, तो SC is the intercept on the amplitude axis and SUT is the intercept on the mean axis, है ना। So x by a plus y upon b is the equation of the line, है ना। These are the linear theories, these two are the linear theories, but it is a non-linear theory, है ना। So the parabola, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिग्मा m डिवाइड बाई एस यू टी पावर 2 हो जाएगा, जो कि गुडमैन के केस में पावर 1 है ना। तो सिग्मा ए डिवाइड बाई एस सी प्लस सिग्मा एम बाई एस यू टी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। ये हमको गर्बर ने ये फॉर्मूला दिया है ना, इसका बकायदा प्रूफ भी है, डिटेल में यदि जाएंगे, है ना। तो अभी हम बस इतना समझ लें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉन लीनियर है, इसलिए इसमें मीन स्ट्रेस वाले केस में हम पावर 2 ले रहे हैं फॉर दी याद रखने के मतलब से, है ना। तो गर्बर पैराबोला की ये इक्वेशन होती है। अब हमें हमारा फोकस क्या है, वी हैव टू प्लॉट ऑल दीज थ्री कर्व्स। तो देखो प्लॉट करने के लिए मेरे पास एक तो प्लॉट कमांड होती है, एक मेरे पास EZ प्लॉट भी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि आप दोनों से कर सकते हैं, बट यदि फिगर थोड़ी सी सिंबॉलिक फॉर्म में है, जैसे कि ये इक्वेशन आपकी क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में लग रही है। अब ये यहाँ पे देखो, ये सिग्मा ये क्या है, सिग्मा ये क्या है, एक तरह से सिंबॉलिक ही है। सिग्मा वाई क्या है, एक तरह से सिंबॉलिक है, ठीक है। अब एंडोरेंस लिमिट को आप देखें तो एंडोरेंस लिमिट इज नॉट सिंबॉलिक। एंडोरेंस लिमिट तो आपको पता रहेगी ना कि कितनी एंडोरेंस वैल्यू है ना। तो मान लीजिए कि मैं आपको एंडोरेंस लिमिट दे दूंगा, है ना, आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, या आप मटेरियल डिसाइड कर लें, या कुछ आप कोई कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, तो इन दैट केस यू कैन फाइंड एससी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, के ए के बी के सी के डी के ई एस सी डैश, होते हैं कि नहीं होते हैं एससी को निकालने के। तो एससी कैन बी फाउंड न्यूमेरिकली। यदि कोई आपके सामने डिजाइन प्रॉब्लम है, तो in that problem what is endurance limit you can find, what is the ultimate tensile strength that also you can find, and what is SYT that also you can find. So SC, SYT and SUT, these are not the symbolic variables, these are these variables are having numerical value. तो यदि मुझे EZ प्लॉट से इनको प्लॉट करना होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करने होंगे, कुछ सिंबॉलिक वेरिएबल्स मुझे बनाने होंगे, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक वेरिएबल्स में कौन कौन से सिंबॉलिक वेरिएबल्स बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सिंबॉलिक वेरिएबल्स, तो मैं थोड़ा पहले से क्लियर कर देता हूं, या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं, आई एम कमिंग टू अनदर स्लाइड। चलिए, तो पहले जरा सा इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं ना। अब इस प्रॉब्लम में आपको ये तीनों चीजें प्लॉट भी करनी है
और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक तरह से लैब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। जैसे क्या दिया हुआ है, ए मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है, दैट वेरीज फ्रॉम 40 टू 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो देखो क्या वैल्यूज दे रखी हैं, एक तो 40 है, एक 100 है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस। तो आपके केस में सिग्मा मिनिमम इज गिवन 40 मेगापास्कल, सिग्मा मैक्सिमम इज गिवन 100 मेगापास्कल। तो बताइए ये कैसा केस है, इट इज ए रिवर्स बेंडिंग केस और इट इज ए फ्लक्चुएटिंग केस? संदीप बताओ। केस। इट इज ए फ्लक्चुएटिंग केस है ना। तो फ्लक्चुएटिंग केस में सिग्मा एम और सिग्मा ए दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो सिग्मा एम आप निकाल सकते हैं 100 प्लस 40 यानी 140/2, यानी कि 70 मेगापास्कल आपका मीन स्ट्रेस है। और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं 100 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 मीन 60/2, सो 30 मेगापास्कल इज योर एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा एम और सिग्मा ए ये आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस क्वेश्चन में दे रखा है। द करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस फॉर द मशीन कंपोनेंट इज गिवन 270, ठीक है। तो अभी देखो मैंने गुडमैन लाइन की इक्वेशन लिखी थी, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस सी प्लस सिग्मा एम डिवाइडेड बाई एस यू टी इक्वल टू 1, ये हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। तो इन दिस इक्वेशन एससी तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो गई, 270 हो गई। तो इट कैन बी रिटर्न सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 270, है ना। ये 270 डायरेक्ट दे रखी है, पूरी कंप्लीट है ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, करेक्टेड मींस इसमें सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हो चुका है, के केबी केसी केडी। सो एससी फाइनली इट इज गिवन 270 in your case. The ultimate tensile strength and yield strength of the material are 600 and 450. तो SUT 650 दे रखा है आपको, तो सिग्मा m डिवाइडेड बाई 650 इक्वल टू 1। अब हमको इस लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है। अभी आप स्ट्रेस को अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, स्ट्रेस यहाँ पे किसी और मतलब से दे रखे हैं, ये डिजाइन किसी पॉइंट के लिए है। अभी हमारा फोकस लैब के हिसाब से सिर्फ इतना है कि हम इन तीनों फिगर्स को प्लॉट कर सकें। तो प्लॉट करने के लिए हम एंड्योरेंस लिमिट कितनी लेंगे, 270 लेंगे, एसयूटी कितनी लेंगे, 600 दिया हुआ है, इट इज नॉट 650, इट इज 600। तो इसको मैं 600 कर देता हूँ, है ना। और वो कितना है, एस वाई टी 450 है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम मान लो मैटलैब प्रोग्राम बनाते हैं। ये तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे, क्लियर ऑल, then you will write CLC, then you will define SC. SC is given in question how much, 270, it is your 270। और ये मैंने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस इट इज ए सप्रेस ऑपरेटर, है ना, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। सो SC is 270 and SUT, है ना। अब SUT देखिए, SUT is given 600 सेमीकोलन, SYT is given 450 सेमीकोलन। आपने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आपके जो दो वेरिएबल हैं, जैसे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस सी प्लस सिग्मा एम डिवाइडेड बाई एस यू टी इक्वल टू 1। इस लाइन को प्लॉट करना है, आई वांट टू प्लॉट दिस लाइन, है ना। तो अब ये लाइन बेसिकली इसको मुझे प्लॉट करना है। तो सिग्मा ए और सिग्मा एम तो मेरे एक तरह से एक्सिस है ना, एक एम्पलीट्यूड एक्सिस है, एक मीन एक्सिस है। तो इन दोनों एक्सिस को मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे सिंबॉलिक वेरिएबल। तो आई विल राइट SYMS। SYMS is a command for declaring the symbolic variables. So first symbolic variable is sigma A and second is symbolic variable is sigma M। तो सिग्मा आप मैटलैब में ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, तो सिग्मा ए लिखने के लिए आप ऐसे लिखना SIGMA, सिग्मा ए एंड सिग्मा एम। कोई भी नाम दे सकते हैं आप वेरिएबल को, है ना, बीच में कोई गैप नहीं होगा, सिग्मा और ए के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ऐसे ही सिग्मा और एम के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा।
तो मेरे वेरिएबल्स का नाम क्या हो गया, सिग्मा एम ए एंड सिग्मा एम एम। दो बार एम तो नहीं जरूरत है, एक ही बार लिख सकते हैं। तो सिग्मा ए करिए, एक ही बार ये लगाइए, सिग्मा ए एंड सिग्मा एम, है ना। इस लाइन को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, एस वाई एम एस सिग्मा ए एंड सिग्मा एम। ठीक है, ये हमने सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हमें प्लॉट करना है इस पर्टिकुलर लाइन को। तो इसको प्लॉट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है ईजेड प्लॉट, ईजेड प्लॉट के अंदर आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा ए, है ना। तो सिग्मा के लिए अब वेरिएबल का नाम तो ये है, तो आपको लिखना पड़ेगा एस आई जी एम ए सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस ई प्लस सिग्मा एम डिवाइडेड बाई एस यू टी, है ना। और उसके बाद इस वन को यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -1। देन यू कैन राइट -1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। हाँ हेलो हेलो, हाँ। तो ये मैंने -1 इधर शिफ्ट कर लिया है ना, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगी इक्वेशन। तो मैटलैब में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को आप प्लॉट करेंगे तो मैटलैब ये समझता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, बाय डिफॉल्ट उसे 0 मान लेता है वो। ठीक है, तो ईजेड प्लॉट सिग्मा ए डिवाइड बाई एस ई प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई एस टी -1। ठीक है, बस इसको आप प्लॉट करिए। अब ईजेड प्लॉट जो प्लॉट करता है तो उसकी रेंज क्या होती है, व्हाट इज द रेंज फॉर द ईजेड प्लॉट ना, ईजेड प्लॉट की रेंज क्या होती है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ईजेड प्लॉट की जो रेंज होती है वो होती है -2 से लेके +2 के बीच में प्लॉट करता है, -2 से +2 के बीच में प्लॉट करता है। लेकिन अब हमें रेंज क्या चाहिए, है ना। अब आप फिगर देखिए जरा, क्या रेंज है, व्हाट इज द रेंज फॉर द एक्स एक्सिस, द रेंज फॉर द एक्स एक्सिस इज, range for the x-axis is 0, SUT। तो माइनस साइड में तो प्लॉट की रेंज है नहीं, केवल प्लस साइड में ही प्लॉट की रेंज है ना। तो यदि बाय डिफॉल्ट रेंज होती है 2 पाई, है ना, बाय डिफॉल्ट जो रेंज होती है वो 2 पाई होती है, -2 पाई से +2 पाई होती है। तो मैं अपनी रेंज डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी जो मिनिमम रेंज है वो तो 0 है, और जो मैक्सिमम रेंज है वो मेरी कितनी है, SUT। तो SUT से थोड़ा सा ज्यादा रखा जा सकता है ग्राफ की अच्छी विजिबिलिटी के लिए। तो SUT से थोड़ा सा ज्यादा आप रख लीजिए, अपनी रेंज को आप ऐसा रख सकते हैं, 1.5 SUT रख सकते हैं या 1.25 SUT रख सकते हैं। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी 2 पाई से लेके 1.25 SUT। तभी तो आपका इस रेंज के अंदर ग्राफ जनरेट होगा। तो अब हम यहाँ पर जो हमने ईजेड प्लॉट लिखा है, तो यहाँ पे हम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को हटाते हैं, कॉमा लगाते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं 0 से 1.25 इंटू SUT। ये हमने रेंज डिफाइन कर दी, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जो ब्रैकेट यहाँ से हटाया था वो ब्रैकेट अब लास्ट में पहुंच गया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया, रेंज डिफाइन कर दी 0 से लेके 1.25 SUT। तो ये जो रेंज है, ये रेंज किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए रेंज है ये। दिस इज द रेंज फॉर द मीन एक्सिस, है ना। अब आइए वाई एक्सिस पर यानी कि एम्पलीट्यूड एक्सिस पर आ जाइए। तो एम्पलीट्यूड एक्सिस पर आपकी रेंज क्या है, आपकी रेंज है 0 से लेके SE तक है ना। तो अब आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं 0 से लेके 1.25 SE, है ना। SE से मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ जिससे मेरा ग्राफ सिर्फ यहीं तक सीमित न रह जाए, थोड़ा सा आगे तक आ जाए, है ना। तो यहाँ रेंज हो गई 0 to 1.25 SE, और यहाँ पे रेंज हो गई 0 to 1.25 SUT। ठीक है, तो अब मैं वापस आ गया अपनी कोडिंग में, और मैंने यहाँ पर इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना, इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया 0 1.25 इंटू SE।
ये मेरा EZ प्लॉट हो गया। तो ये कोडिंग से मेरा कौन सी लाइन प्लॉट हो जाएगी? गुडमैन लाइन प्लॉट हो जाएगी। करेक्ट, बहुत आसान है, कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे सोडरबर्ग लाइन प्लॉट करनी हो, तो ये एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। तो कोई बता सकता है सोडरबर्ग लाइन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई विल राइट EZ प्लॉट, इसके अंदर सोडरबर्ग की इक्वेशन। सोडरबर्ग की इक्वेशन क्या है? सिग्मा A डिवाइडेड बाई SC प्लस सिग्मा M डिवाइडेड बाई SYT। सोडरबर्ग में कौन सी लिमिट आती है? SYT, है ना, और -1 और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेंज डिफाइन करिए, 0 1.25 SYT इनटू लगा करके कॉमा, कॉमा लगा सकते हैं, नहीं भी है तो स्पेस दे सकते हैं, 0 1.25 SC स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करिए और उसके बाद में बड़ा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करिए। तो बाय दिस पर्टिकुलर लाइन we will be, or by this particular command we will be able to plot Soderberg line. You can plot the Soderberg line, correct है? अब गर्वर को भी ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं। तो गर्वर के लिए अब आप लोग बता सकते हैं कि क्या लिखना पड़ेगा, बहुत ही आसान होगा। तो मुझे ये बताइए जरा, क्या आपको ये कोडिंग थोड़ी सी समझ में आई है कि कैसे प्लॉट करेंगे? एनीवन? राहुल? यस सर। हाँ, क्या आपको ये कोडिंग समझ में आई है? यस सर। हाँ, तो वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसे सर करिए। एसई के लिए पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी सर? किसके लिए? एसई के लिए, एंडोरेंस लिमिट के लिए पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी? नो 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 नो, एससी के लिए तो आपको डायरेक्ट एससी गिवन है ना क्वेश्चन में, 270 इट इज गिवन। तो आप Okay, जस्ट, हाँ, तो ये आपने डिफाइन कर तो दिया एससी 270, है ओके ना। सर। तो मैटलैब क्या करेगा, जब आप इस जगह पे आएंगे ना, तो यहाँ पर एससी की वैल्यू 270 ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, ओके है सर। ना। ओके हाँ, 270 ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, एसयूटी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, एसवाईटी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। जस्ट आपको एक बार डिफाइन करना है, सर ठीक है। हाँ बोलिए। सर आपने ऊपर सेमीकोलन लगाने की क्या जरूरत थी? सेमीकोलन लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सेमीकोलन सप्रेस ऑपरेटर होता है। यदि आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो जो कमांड विंडो है, जो आपकी कमांड विंडो है, उस कमांड विंडो के अंदर ये आउटपुट दिखाई देगा। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको SE इक्वल टू 270 दिखाई देगा, SUT इक्वल टू 600 दिखाई देगा, SYT इक्वल टू 450 दिखाई देगा, है ना। और फिगर विंडो अलग से खुलेगी, उस फिगर विंडो में आपको क्या दिखाई देगा? फिगर विंडो में आपको प्लॉट दिखाई देगा। कौन सा प्लॉट दिखाई देगा? ये गुडमैन लाइन का दिखाई देगा, सोडरबर्ग लाइन का दिखाई देगा। आपको दो प्लॉट दिखाई देंगे। तो देखिए, फिगर विंडो अलग है, कमांड विंडो अलग है। तो ये सप्रेस लगाने से क्या होगा, कमांड विंडो का जो आउटपुट है वो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो फोकस है वो फिगर विंडो पर है, मेरा फोकस कमांड विंडो पर है ही नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे सप्रेस ऑपरेटर लगा दिया है। तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ ढेर सारी लाइंस हो जाती हैं, तो ये टाइम, बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड होता है इसमें। आपको याद हो तो शुरुआत की मैटलैब क्लासेस में मैंने आपको 1 से 10 लाख या 1 करोड़ तक काउंटिंग लिखने के लिए बोला था, यस सर। है ना। तो आपने देखा था कि उसमें कितना टाइम लगा था, उसे वो लिख भी नहीं पाया था मैटलैब। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए सप्रेस ऑपरेटर है। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कमांड है नहीं, 2-3 कमांड है, तो इनको लिखने से या ना लिखने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया अब आपको? ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। देखो अब कितनी लाइन्स हुई टोटल, आप काउंट करें। क्लियर ऑल 1, CLC 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, ज्यादा 7-8 लाइन में आपने दोनों प्लॉट्स को विथ रेंज प्लॉट कर लिया है ना। मेरी क्लास चल रही है, थोड़ा वेट करो 5 मिनट। वो सही जगह आया था, उसे बोलो अंदर आ जाएगा दरवाजा खोल के। हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अब मैं बस आपको एक लाइन और बता देता हूँ गर्वर की, है ना। तो गर्वर के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो, गर्वर के लिए मैं लाइन आपको यहाँ दिखाता हूँ। गर्वर के लिए जो लाइन आएगी वो आएगी EZ प्लॉट, है ना। पहले आपको गर्वर पैराबोला की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या है? गर्वर की इक्वेशन है सिग्मा A डिवाइडेड बाई SC
प्लस सिग्मा m डिवाइडेड बाई SUT होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, देखो ये मैटलैब में इस तरह का डिवाइड नहीं चलता हॉरिजॉन्टल, मैटलैब में ऐसे ही डिवाइड चलेगा, है ना। और मैटलैब में सिग्मा ए लिख नहीं सकते, तो हमने SIGMA करके एक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाई SE प्लस सिग्मा m डिवाइडेड बाई SUT, ये हो गया। अब इसका ब्रैकेट, और ब्रैकेट करने के बाद इसमें पावर 2 लगी हुई है, देन आई विल यूज पावर 2, ठीक है, -1 और इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर दें? बंद कर दें। सो दिस होल ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। हो गई इक्वेशन। देखो जितने ब्रैकेट ओपन होते हैं उतने ही ब्रैकेट बंद भी होने चाहिए। तो देखो एक ब्रैकेट ये ओपन हो रहा है, एक ब्रैकेट ये ओपन हो रहा है, तो ये वाला ब्रैकेट तो यहाँ क्लोज हो गया, और जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है वो लास्ट में क्लोज हो गया। यदि आप ब्रैकेट में इम्बैलेंसिंग करेंगे तब भी मैटलैब में एरर आती है ना। तो ये ध्यान रखिए, जितने ब्रैकेट ओपन होते हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा EZ प्लॉट हो गया। अब इसमें हम लोग आपको रेंज भी देनी है ना। तो अब आप यहाँ कॉमा लगा के रेंज दे दीजिए, कॉमा लगा के क्या दे दीजिए? रेंज। तो रेंज आप कैसे देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट रेंज क्या हो जाएगी? 0, सेकंड रेंज क्या हो जाएगी? 1.25 इंटू SUT, क्योंकि इसके लिए SUT पॉइंट होता है पैराबोला के लिए। और उसके बाद में y एक्सिस की रेंज दे दीजिए 0, और सेकंड रेंज क्या है? SC। तो यहाँ पे आप 1.25 SC करके रेंज दे सकते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, फिर इसको क्लोज करना है, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करिए और एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करिए। ब्रैकेट की बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी है, क्लियर है। तो इस तरह से आपके ये तीनों प्लॉट हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज अब ये आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट आपको फाइल में लिखना है, तो इसकी प्लॉटिंग करके आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और आपसे हो जाएगा। तो ट्राई करिए, कुछ एरर्स आएंगे उसको रिमूव करिए, और अदरवाइज नहीं होता है देन हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में मैटलैब पर प्लॉट भी करके दिखा देंगे आपको, है ना। वैसे हो जाएगा जो भी प्रीवियस नॉलेज है। तो अब मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, कोई आपकी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन दिस लैब, है ना। हमारा फोकस है कि हमें तीनों तरह की थ्योरीज को प्लॉट करना है ना। एक ही ग्राफ के अंदर हमें 3 ग्राफ बनाने हैं, जिसमें 2 लीनियर ग्राफ हैं और एक आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ है पैराबोला, ठीक है। और हम इस काम को EZ प्लॉट फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं मैटलैब पर, ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, कहाँ पर सिंबॉलिक वेरिएबल बनाना है ना, कहाँ पर रेंज डिफाइन करनी है। तो लॉट ऑफ लर्निंग है, मतलब आपने फेलर ऑफ थ्योरीज किया, अब आप इसको करेंगे तो वो नॉलेज आपकी यहाँ पर थोड़ी सी इंप्लीमेंट हो जाएगी, है ना। जो कुछ भी आप मैटलैब में थोड़े से रम जाएंगे आप। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। EZ plot is a very good function. Just declare the symbolic variable. Draw the value, है ना। उसको -1 इक्वल टू 0 करके किसी भी इक्वेशन को आप लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड शुड बी 0, और उस लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखेंगे EZ प्लॉट के अंदर, रेंज डिफाइन करेंगे, देन मैटलैब विल प्लॉट दैट ग्राफ फॉर यू विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। तो ये आज की क्लास के लिए इनपुट मेरी तरफ से इतना ही है। एंड करने से पहले यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल एंड। थैंक यू सर। सब क्लियर है? सर मैटलैब का सर सेंड कर देना सर सॉफ्टवेयर। हाँ, मैटलैब का लिंक सेंड करूंगा, है ना। अब मैं पहुंचने ही वाला हूँ, बस मेरा 1-2 है आसपास ऑफिस में, तो मैं वहां पहुंच के करता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं एंड करता हूँ मीटिंग को।